वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग कोलिजन थ्योरी स्टडी कर रहे थे बाई मॉलिकुलर रिएक्शंस के लिए। तो पिछले टर्म पर प्रीवियस लेक्चर में हमने इक्वेशन डिराइव करी थी डी लॉग के अपॉन डी टी इज इक्वल टू ई अपॉन आर टी स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 4। और हमने ये देखा था कि दिस इक्वेशन इज आइडेंटिकल with Arrhenius equation if we know the value of sigma means collision diameter, then collision number Z can be calculated. If it is possible to compare it with the experiment value of frequency factor, then we find that both are the identicals. If the bimolecular reaction involves two molecules of different species, अभी तक हमने क्या देखा था? Both the molecules are same or of same species. But if the bimolecular reaction involves two molecules of different species, then the collision number Z is given by Z is equal to sigma square 8 pi RT ब्रैकेट में m1 प्लस m2 अपॉन m1 m2 की पावर 1/3। m1 और m2 क्या है? m1 and m2 are the molecular weight of different species. एक का वेट है m1 और एक का m2। तो मास की जगह हम क्या लेंगे? m1 प्लस m2 अपॉन m1 m2। इसको हम कहते हैं रिड्यूस्ड मास। दिस इज नोन एज रिड्यूस्ड मास। अब this equation are applicable to simple homogeneous reactions. Homogeneous reaction means when the reactant and product are in same physical state, but will not apply to heterogeneous reactions or chain reaction. यदि रिएक्शन हेट्रोजीनस है, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट डिफरेंट फिजिकल स्टेट में है, या चेन रिएक्शन है, देन द इक्वेशन दीज इक्वेशंस आर नॉट एप्लीकेबल। ए प्लॉट बिटवीन log k and 1/t will not be exactly linear. यदि हम log k को 1/t के अगेंस्ट प्लॉट करें तो ये एग्जैक्टली लीनियर नहीं होता। बट अगर हम log k अपॉन √t को 1/t के अगेंस्ट प्लॉट करें तो इट इज ऑलमोस्ट लीनियर। लेस डेविएशंस आर ऑब्जर्व्ड। Less deviations are observed on plotting log k upon √t against 1/t. Now here you see comparison between theoretical, that is calculated values of activation energy and experimental value of activation energy. Energy is taken in calories. First reaction is 2N2O give rise to 2N2 plus O2. इसके लिए कैलकुलेटेड वैल्यू जो इस कोलिजन थ्योरी के अकॉर्डिंग हम कैलकुलेट करेंगे एक्टिवेशन एनर्जी, दैट विल बी 56,000
कैलोरीज, और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू डिटर्मिन करेंगे, इट विल बी 58,000 कैलोरी. 2HI converted into H2 plus I2. Calculated value is 44,000 calories, and experimental value is also 44,000 calories. इसकी रिवर्स रिएक्शन, that is H2 plus I2 will form 2HI. Calculated value 40,000 calories एक्टिवेशन एनर्जी की, और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू इज फाउंड टू बी 39,500 calories. This means the experimental value closely resembles with the theoretical or calculated value. प्रायोगिक मान सैद्धांतिक मान से समानता रखता है. तो ये कोलिजन थ्योरी की सक्सेस है, सफलता है. द सक्सेस ऑफ द कोलिजन थ्योरी कैन बी जज्ड फ्रॉम द अबव टेबल, in which the activation energy is calculated according to the equation. कौन सी इक्वेशन? K is equal to A E की पावर minus E upon RT, as well as based upon experimental data have been compared. It will thus be seen that there is a very good agreement between the calculated and the experimental value. There is a very good agreement between the calculated and the experimental value. So, this supports the collision theory. Now we come to failure or collision theory, or limitations of collision theory. However, there are certain reactions where the experimental and calculated value differ. जहाँ डिफरेंस होता है किसमें? कैलकुलेटेड वैल्यू में और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू में. एग्जाम्पल बताते हैं आपको. रिएक्शन बिटवीन वेपर्स ऑफ इथेनॉल एंड एसिटिक एनहाइड्रेट. इथेनॉल की रिएक्शन जब एसिटिक एनहाइड्रेट से कराई जाती है तो इस रिएक्शन के लिए कैलकुलेटेड वैल्यू अकॉर्डिंग टू कोलिजन थ्योरी और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू में बहुत अधिक डिफरेंस होता है. अनदर एग्जाम्पल, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ इथिलीन. इथिलीन के 2 मॉलिक्यूल्स आपस में रिएक्ट करते हैं. यहाँ भी थ्योरेटिकल वैल्यू, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू डज नॉट मैच with the theoretical value. In the bimolecular polymerization of ethylene, the reaction occurs only once in about 2000 collisions between the activated molecules. एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स के बीच में अगर 2000 कोलिजन्स होते हैं तो एक बार ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है. इन द पॉलीमराइजेशन ऑफ 1,3-butadiene द रिएक्शन ऑकर्स ओनली वंस इन अबाउट 10,000 collisions between the activated molecules. So we can see the number of collision between the activated molecules is much more times as compared to the chance of a chemical reaction. तो इसको बैलेंस करने के लिए we have one term known as steric factor. Steric factor. What is this? A sufficient number of slow reactions are known which shows
that the phenomenon is limited to few instances, and the equation k is equal to z e की power minus e upon rt reduces to k is equal to p z e की power minus e upon rt। क्या मतलब हुआ? बहुत सारी ऐसी रिएक्शंस जो स्लो होती हैं, उनमें ये देखा गया कि एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स के हर एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स के बीच में होने वाला कोलिजन प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होता। तो ऐसे चांसेस जब कोलाइडिंग मॉलिक्यूल, एक्टिवेटेड कोलाइडिंग मॉलिक्यूल रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाए, बहुत कम होते हैं। तो जो हमारी इक्वेशन थी k इज इक्वल टू जेड ई की पावर माइनस ई अपॉन आर टी, उसको हम इक्वेट करने के लिए लिखेंगे k इज इक्वल टू पी जेड ई की पावर माइनस ई अपॉन आर टी। मतलब इसको हमने p टर्म से मल्टीप्लाई कर दिया। p कहलाता है प्रोबेबिलिटी फैक्टर और स्टीरिक फैक्टर, which makes allowances for effect causing deviation from the ideal behavior। P जो है वो आइडियल बिहेवियर के समकक्ष करने के लिए डेविएशन को फैक्टर है, जिसको हम कहते हैं स्टीरिक फैक्टर और प्रोबेबिलिटी फैक्टर। अब द वैल्यू ऑफ P वेरीज फ्रॉम यूनिटी टू 10 to the power minus 8 depending upon the nature of reaction। P की वैल्यू 1 से लेकर 10 to the power minus 8 तक वेरी करती है। P की वैल्यू 1 का मतलब हुआ कि जो मॉलिक्यूल, जो एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल कोलाइड हुए वो सब कन्वर्ट हो गए किसमें? प्रोडक्ट में। और अगर कम होते हैं तो उसी के अकॉर्डिंग P की वैल्यू होती है। कहाँ तक हो सकती है? यूनिटी से 10 to the power minus 8। यदि P की वैल्यू 10 to the power minus 8 है तो ये क्या इंडिकेट करेगा कि मोस्ट ऑफ द एक्टिवेटेड कोलाइडिंग मॉलिक्यूल डज नॉट कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट। नाउ anomalies were also found to exist in liquid system। These were assumed to be due to solvent effect। लिक्विड सिस्टम में अगर लिक्विड फेज रिएक्टेंट हैं तो जो एनोमलीज मिलती हैं वो हो सकता है कि सॉल्वेंट इफेक्ट की वजह से, बट इन सम केसेस दीज वर फाउंड टू बी प्रेजेंट इन गैसियस सिस्टम ऑल्सो। गैसियस रिएक्टेंट में भी होती है। सेवरल वीकनेस of collision theory have been found in recent years। There are many failures of this collision theory found in recent years। First, number one, firstly, attempts to correlate the value of P with the structure and properties of reactant molecules have not been successful। फिर से समझ लीजिए कि P एक रैंडम फैक्टर है। इसकी वैल्यूज़ को, जो भी इसकी वैल्यू आती होती है पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए, उसको हम रिएक्टेंट के स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज़ के साथ कोरिलेट नहीं कर पाए। अटेम्प्ट्स टू कोरिलेट द वैल्यू ऑफ P with the structure and properties of reacting molecules have not been successful। ये एक शॉर्टकमिंग है कोलिजन थ्योरी की। सेकेंड वन, ऑन द बेसिस ऑफ
collision theory, it is not possible to advance an explanation for abnormally high reaction rates. P की ये तो हम समझ गए कि all the activated molecules on collision may not be converted into product, तो रेट ऑफ रिएक्शन कम होगा. लेकिन दूसरी तरफ कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जिनका रेट ऑफ रिएक्शन बहुत हाई होता है, एबनॉर्मली हाई रिएक्शन रेट. ऑन द बेसिस ऑफ कोलिजन थ्योरी हम इन रिएक्शंस को एक्सप्लेन नहीं कर सके. थर्ड वन, ए लॉजिकल वीकनेस इज ऑब्जर्व्ड व्हेन रिवर्सिबल रिएक्शंस आर कंसीडर्ड. अगर हम रिवर्सिबल रिएक्शंस की बात करें तो दे आर नॉट लॉजिकली एक्सप्लेन्ड बाय द कोलिजन थ्योरी. कैसे? एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं. सपोज एक्स एंड वाई आर रिएक्टेंट विच कन्वर्टिंग इनटू XY प्रोडक्ट. XY प्रोडक्ट ऑल्सो डिसोसिएट इनटू X plus Y reactants. So this is a reversible reaction. A rate constant for the forward reaction is K1 and rate constant for the reverse reaction or backward reaction is K2. तो अब हम यदि फॉरवर्ड रिएक्शन की बात करें तो K1 किसके बराबर हो जाएगा? P1 Z1 e की पावर माइनस E1 अपॉन RT. सपोज फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन है E1 और बैकवर्ड रिएक्शन के लिए एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन है E2. ये दोनों अलग अलग होंगी क्योंकि हर रिएक्शन के लिए एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन डिफरेंट होती है. तो फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए हमने लिखा K1 इज इक्वल टू P1 Z1 e की पावर माइनस E1 अपॉन RT. K2 इज इक्वल टू P2 Z2 e की पावर माइनस E2 अपॉन RT. दिस इज फॉर बैकवर्ड रिएक्शन. सिंस हम जानते हैं K इज इक्वल टू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इक्वल टू K1 अपॉन K2. सो K इज इक्वल टू K1 अपॉन K2. K1 की जगह लिखे हैं P1 Z1 e की पावर माइनस E1 अपॉन RT डिवाइडेड बाई P2 Z2 e की पावर माइनस E2 अपॉन RT. अब क्योंकि P1 Z1 अपॉन P2 Z2 को हमने एक साथ में ले लिया, यहाँ क्या बचेगा? e की पावर E1 माइनस E2. या हम लिख सकते हैं माइनस E2 माइनस E1. तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो इट इज E1 माइनस E2 अपॉन RT. अकॉर्डिंग टू थर्मोडाइनमिक्स वी हैव, थर्मोडाइनमिक्स से हम क्या जानते हैं? K इज इक्वल टू E की पावर माइनस डेल्टा G अपॉन RT और K इज इक्वल टू डेल्टा G को हम लिख सकते हैं डेल्टा S प्लस डेल्टा H तो अपॉन RT. तो K इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? E की पावर माइनस डेल्टा S अपॉन RT इंटू E की पावर माइनस डेल्टा H अपॉन RT, जहाँ डेल्टा G क्या है? इंक्रीज इन गिब्स फ्री एनर्जी. डेल्टा S इंक्रीज इन एंट्रोपी. माइनस है तो इट इज डिक्रीज इन एंट्रोपी. डेल्टा H चेंज इन एंथैल्पी, या माइनस है तो इट इज डिक्रीज इन एंथैल्पी. कंपेयरिंग दीज इक्वेशन फॉर K, इन इक्वेशंस को हम जब कंपेयर करेंगे, किन इक्वेशन को? एक तो होगी K इज इक्वल टू P1 Z1 अपॉन P2 Z2 e की पावर E1 माइनस E2 अपॉन RT, और दूसरी है K इज इक्वल टू E की पावर माइनस डेल्टा G अपॉन RT.
तो हम क्या देख रहे हैं? इट इज क्लियर दैट ई की पावर माइनस E1 माइनस E2 अपॉन RT करस्पॉन्ड विद वन अनदर। अब यदि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल्स की जो डायमेंशंस हैं वो लगभग बराबर हैं, तो इस केस में हम Z1 इज इक्वल टू Z2 मान सकते हैं। कब मान सकते हैं? इफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स आर ऑफ कंपेरेबल डायमेंशंस। आकार या डायमेंशंस अगर लगभग बराबर है तो Z1 इज इक्वल टू Z2। अब Z1 इज इक्वल टू Z2 हो जाएगा तो Z1 और Z2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या रह जाएगा? P1 अपॉन P2। और उधर से कंपेयर करेंगे तो E की पावर माइनस डेल्टा S अपॉन RT मस्ट बी इक्वल टू P1 अपॉन P2। इसमें दो टर्म है, एनर्जी या एंथैल्पी टर्म इज ऑलमोस्ट सेम, तो ये तो इसके सेम सिमिलर हो गया। अब क्या बचा? P1 Z1 अपॉन P2 Z2 इज इक्वल टू E की पावर माइनस डेल्टा S अपॉन RT। E की पावर E1 माइनस E2 अपॉन RT को हम किसके बराबर मान लेंगे? E की पावर माइनस डेल्टा H अपॉन RT। तो ये टर्म कैंसिल हो गई। अब Z1 और Z2 बराबर हैं, तो यहाँ क्या रह गया? केवल P1 अपॉन P2, और यहाँ रह गया E की पावर माइनस डेल्टा S अपॉन RT। सो द टर्म E की पावर माइनस डेल्टा S अपॉन RT must be equal to P1 upon P2. It is therefore not sufficient to correlate the probability of a certain reacting groups being together in collision. They should be interpreted in terms of entropy factor. Delta S is change in entropy. P1 और P2 को हम किसके टर्म में कोरिलेट करना चाहिए कर पाएंगे? डेल्टा S entropy factor. So it is not sufficient to correlate the probability of certain reacting groups being together in collision. They should be interpreted in terms of entropy factor. So this is the collision theory applied to bimolecular reaction and its failures and overcoming of failures. So this is all for today. नेक्स्ट टर्न पर हमारा टॉपिक होगा कोलिजन थ्योरी फॉर यूनिमॉलिकुलर रिएक्शंस। इट इज we see how the collision theory is also applicable for unimolecular reactions. Thank you.